Thank you. Hello. Ah, Yeah, sir, I will over the phone. So now you can record. okay. Thank you. So, good evening, students. Good evening, sir. Okay. So today we are starting a new topic. Okay. Junction field effect transistor. So can I start? Yes, sir. Okay. So first of all, let us see what is the construction and operation of junction field effect transistor. In short, we write JFET. Okay. So there are two type of JFETs. Okay. So we can divide junction field effect transistor in two type. One is called N channel. सर हाँ सर क्लास अभी स्टार्ट हुआ है ना? हाँ अभी स्टार्ट हुआ है. N channel JFET. Okay, and other is P channel JFET. Okay, so I told once why these transistors are called field effect transistor, because by the application of electric field you control the flow of current. Okay, unlike in BJT where by just varying input current you vary output current. Okay, so there is a that was a current control device, while this is a field control device. Okay, that's why we call field effect transistor. Okay, so what is N channel JFET, N channel JFET and P channel JF? So the difference is because of their channel. So let me explain the construction of JFET. So in JFET we have a N type of semiconductor. Okay, N type of semiconductor means if I'm explaining N channel JFET, N channel, इसको यहाँ देते हैं, जगह चाहिए यहाँ पर. This is my N channel JFET. Okay, so in N channel JFET you have a silicon, you have N type silicon or any germanium bar. Okay, N type semiconductor bar, and in this semiconductor inside you have two P type regions. Okay, so this is a there's a N type of channel, N type of rod. Okay, N type of bar, crystal bar. Oh, and both side of this crystal bar we have this P type of region. Okay, so here we have ohmic contacts. So this contact is called your drain and other contact is called your source. Okay, now it's like a wire. Okay, if you apply voltage the current will flow. Okay, so if I apply a voltage, okay, across, now here source is grounded, source is grounded. Now if I apply a voltage VDD, a variable voltage, so there will be between D and S. Okay, between D and S there will be voltage drop. That is voltage drop is called VDS. Okay, so as I'm changing the voltage, okay, the voltage across this bar is changing and the current will flow. Now, so this is the N type of semiconductor. The majority charge carriers in this N channels are electron. Okay, so I am flowing current. So electrons are coming from source to drain. Because I'm playing positive. हाँ सर, एक चीज थोड़ा धुंधला आ रहा है क्या सभी को? नहीं सर, अभी क्लियर है सर. अच्छा, और शायद फोकस कर, एक मिनट लेट मी चेक कर, फोकस करने दो मुझे. फोकस तो ऑन है सर, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं. ओके. सो सर सोर्स मतलब जहाँ से करंट जा रहा है, ड्रेन मतलब जहाँ से निकल रहा है. भाई एक कांटेक्ट को उन्होंने सोर्स बोल दिया, एक कांटेक्ट को ड्रेन बोल दिया. भाई वायर में क्या होता है, तुम बैटरी का ऐसा लगाओ कैसे भी लगाओ करंट तो फ्लो करेगा ना. तो ये अच्छा. ये ओमिक कॉन्टेक्ट्स है. ठीक है, एक टर्मिनल को बोल दिया ड्रेन, एक को बोल दिया सोर्स.
Okay, so now if you apply current, electron will flow from source to drain. Okay, and the conventional current ID, okay, drain, इसको बोलते हैं drain current, that will be opposite to the flow of electrons. So these are flow of electrons. Okay, these are electrons. Okay, now because there are p region, okay, so whenever we bring a n type semiconductor in contact of a p type of semiconductor, what happens? Depletion region is formed. Depletion region is formed. Okay, so here we have, when there is no bias, we have a symmetric depletion region. Okay, this is my depletion region. Okay, now as soon as, and now these p type of regions are called gate electrodes. Okay, this is VDS and this is my gate electrode, and these two gates, okay, are short. Okay, so ये दोनों गेट क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं. शॉर्ट होते हैं मतलब हम एक ही वोल्टेज से, एक ही सप्लाई से दोनों को वोल्टेज देते हैं. ओके, सेम वोल्टेज देते हैं. दीज आर शॉर्ट्स, इनको शॉर्ट कर दिया. ठीक है, नाउ फर्स्ट केस में अब आई एम अज्यूमिंग दैट VG इज 0. हाँ सर. हाँ सर वो शॉर्ट वाला एक बार स्टेटमेंट फिर से समझा दीजिएगा. शॉर्ट का मतलब है भी जैसे मुझे इन दोनों को वायर से शॉर्ट कर दिया, अगर मुझे दोनों तरफ वोल्टेज लगाना है तो मैं एक ही सोर्स से वोल्टेज लगा सकता हूँ. जी सर, जी सर. मतलब एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसमें एक ही बैटरी से दोनों को शॉर्ट कर दिया, दोनों को वोल्टेज मिल जाएगा. ठीक है, तो ये मतलब सर दोनों तरफ से वायर निकाल के इस ब्लॉक में लगा दिया. दोनों को शॉर्ट कर दिया, दोनों को एक वायर लगा के शॉर्ट कर दिया. ठीक है, नाउ दिस इज गेट. ओके, नाउ इस गेट को तो मुझे वोल्टेज देना है. ओके, सो आई कैन, सो फर्स्ट केस आई एम अज्यूमिंग आई एम नॉट गिविंग एनी वोल्टेज टू गेट. So the VGS, okay, the gate voltage with respect to source, VGS is 0 in the first case. Okay, that means इसको मैंने ग्राउंड, इसको मैंने सोर्स से कनेक्ट कर दिया. जैसे मैंने इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इस पे वोल्टेज 0 हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट हो गया गेट. सो फर्स्ट केस में मैं गेट पे कोई वोल्टेज नहीं लगा रहा हूँ. ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ओनली आई एम चेंजिंग दिस VDD. सो जैसे ही मैं इस VDD को चेंज करूंगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज चेंज होगा. ओके, एंड करंट फ्लो होगा, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे आपका करंट फ्लो होता जाएगा. बट देयर इज अ ट्विस्ट, बिकॉज आई एम अप्लाइंग हियर रिवर्स बायस. दिस इज एन चैनल. ओके, दिस इज एन चैनल. दिस सेमीकंडक्टर इज एन चैनल एंड आई एम अप्लाइंग प्लस, सो आई एम मेकिंग इट रिवर्स बायस. सही है कि नहीं है? यस सर. दिस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन चैनल, is reverse bias comparison to this P, because I'm applying this is negative n channel and I'm applying. सर हाँ, रिवर्स मतलब होता है P का N से, N का P से ना. तो मैंने तो ये n है ना, ये n को यस मैंने सर, n को मैंने प्लस से कर दिया, प्लस से कर दिया, तो ये रिवर्स बायस नहीं हो और गया? सर दूसरे में N को माइनस से भी तो फिर किया है. कहाँ किया है माइनस से? सोर्स का देखो. ग्राउंड के साइड पे सर. हाँ सर जो सोर्स पे लगा रखा है वो ग्राउंड है ना, उसमें वो तो ग्राउंड है ना, ground. इसके विथ रिस्पेक्ट टू तो वोल्टेज लगा रहा हूँ चैनल को. ठीक है, तो अब सपोज मैं यहाँ पे अगर ये यूनिफॉर्म बार है तो मैं 10 वोल्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा, फिर बाकी वोल्टेज यहाँ आके 0 हो जाएगा. ठीक है, सो वेन एवर आई एम अप्लाइंग वोल्टेज, so there is a reverse bias. Okay, so and the voltage in this at this point voltage is higher compared to this voltage. Okay, तो इसका मतलब जो ऊपर के रीजन है वहां पर रिवर्स बायस ज्यादा है कंपेयर टू नीचे के. तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, मेरा डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी. ओके, सो एज इंक्रीजिंग द वोल्टेज my depletion region will increase because I'm increasing the reverse bias. But because the more voltage is applied on the top, okay, यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू डाउन. तो ऊपर जो हो रहा है वो जो डिप्लेशन विड्थ है वो बड़ी होगी, नीचे छोटी होगी, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं रहेगी. सर ऊपर में वोल्टेज ज्यादा है, इसका क्या कर सर? भी यहाँ से सप्लाई लगा रहा हूँ ना, सप्लाई इस पॉइंट पे वोल्टेज, इस पॉइंट पे वोल्टेज जैसे 10 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है? 10 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है? 0. बस तो ऐसे तो बढ़. ओके ओके सर. हाँ, सो हाँ बोलिए. So as soon as I'm keep on applying voltage, what will happen? ये डिप्लेशन रीजन बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट क्या आएगा
जहां पे ये चैनल बंद हो जाएगा। चैनल बंद हो जाएगा मतलब पिंच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो पिंच ऑफ करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, ओके। और यहाँ पिंच ऑफ का मतलब ये नहीं है कि पूरा चैनल बंद हो जाता है, ठीक है। जो चैनल का विड्थ, जो जो एरिया क्रॉस सेक्शन है करंट फ्लो के लिए, वो बहुत कम कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, J इक्वल टू I by A। So when you increasing the voltage, okay, current will flow, but since the opening is small, channel is closed, almost closed, so area of cross section यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये मेरा रॉड है, ये मेरा बार है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका क्रॉस सेक्शन आप छोटा करते जा रहे हो मूवमेंट का, तो क्या होगा, आपका करंट डेंसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ का मतलब होता है कि बंद हो गया, एग्जैक्टली बंद नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब एकदम छोटा हो जाता है। छोटा होने से क्या होता है, करंट तो फ्लो करेगा but with high current density, okay। So now if I plot the graph, okay, between current, this current ID and this voltage VDS, okay, so what will happen now, VDS is positive here, okay, so I am applying VDS. So what will happen, in the beginning current will increase, okay, and as it keep on increasing the voltage, okay, at particular voltage current will become constant, okay, because this opening will become very small, okay. So at the point where this current gets saturates, okay, उस voltage को बोलते हैं pinch of voltage VP, okay। So whenever your VDS, जो applied voltage है VDS is equal to VP, okay, that is called pinch of voltage। मतलब सर जब VDS VP पे होता है तो मतलब बंद हो हाँ, जाता है। जैसे सपोज इस डिवाइस के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट्स है, ओके। सो नाउ आपने वोल्टेज को बढ़ाया 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, जैसे 4 वोल्ट पे पहुंचेंगे उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेट हो जाएगा, ID, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ओके, सैचुरेशन ड्रेन करंट। एंड यहाँ पर VGS कितना है, VGS मैंने क्या किया है, VGS की वैल्यू कितनी है, VGS कितना है, 0 था initially। 0 था initially, okay। So I am keeping VGS constant as at 0, I am increasing the VDS, okay, and I am measuring the current, okay। So for VGS 0, this is the graph, okay, this graph is called output characteristics or drain characteristics, okay। So commonly it is called drain characteristics, okay, or output characteristics, okay। And this region is called, ये रीजन कौन सा है, इस रीजन को बोलते हैं ओमिक रीजन, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट बढ़ रहा है, दिस कॉल्ड ओमिक रीजन, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड योर पिंच ऑफ रीजन, और इसको सर VP के पहले तक का रीजन ओमिक रीजन है ना? हाँ, और इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, पिंच ऑफ रीजन और एक्टिव, जैसे बीजेटी में कांस्टेंट आ जाता है आउटपुट में, उसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। सिमिलरली वी कॉल इट पिंच ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, ओके। सम बुक्स से दिस इज सैचुरेशन रीजन आल्सो फॉर दिस डिवाइस, ओके। सो दिस इज द IV कर्व फॉर ए एन चैनल JFET, ओके। ना यहाँ पर मैंने VGS को जीरो किया है, ओके। अगर मैं VGS को भी वोल्टेज सप्लाई करूं तब क्या होगा, ओके। सो नाउ earlier this VGS was 0, now I have to make it reverse bias, okay। reverse bias करने से क्या होगा, इसको P है इसको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, that means now VGS is what, VGS are negative voltages, okay। So I am applying VGS now negative voltage, okay। So you have to remember for n channel JFET, for n channel JFET your VGS values are negative, वो तो देखते पता चल जाएगा, यहाँ P रीजन है, लगाना हमेशा रिवर्स बायस ही है, तो इसको नेगेटिव करना ही पड़ेगा। और जबकि ये VDS है ये पॉजिटिव है एन चैनल के लिए, क्योंकि ये एन चैनल है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ये P रीजन है तो इसको रिवर्स बायस करने के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा, ओके। अब क्या होगा कि अब दो वोल्टेज एक साथ काम कर रही है, ठीक है। पहले तो खाली ये VDS से ही हम इसको रिवर्स बायस कर रहे थे, नाउ वी हैव VGS आल्सो, दैट आर आल्सो मेकिंग इट रिवर्स बायस, ओके। सपोज लो कि एक काम को हमने पहले एक मजदूर कर रहा था, ठीक है, अब दो कर रहे हैं, तो पहले जो काम ये चार दिन में कर रहा था, अब दोनों अगर इसको भी 2 वोल्ट दे दिया
तो वो काम कितना 2 दिन में हो जाएगा। Yes, समझ sir. रहे हो आप? इसका मतलब सैचुरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, Yes, sir. क्योंकि अब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं और दोनों दोनों ही रिवर्स बायस का काम कर रहे हैं। ओके, तो सपोज दिस इज वेरिएबल अप्लाइंग सम वोल्टेज हियर। सर दोनों को आदमी रिवर्स में इसीलिए लगा रहा है ताकि वो मतलब सैचुरेशन रीजन फाइंड किया जा सके। भी हमको हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको रिवर्स बायस करना है ना इसको। भी पहले भी तो हम इसको रिवर्स बायस ही कर रहे थे ये लगा के। अब यहाँ पे भी वोल्टेज दे दिया, पी को भी नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, तो पी भी रिवर्स बायस करेगा, ये भी रिवर्स बायस करेगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, जैसे दिस वाज फॉर VGS 0, now I'm increasing the increasing VGS. Okay, so what will happen now, this saturation will come, this saturation will come earlier. Okay, so suppose this is VGS equal to -1 volt. Okay, and the saturation current value will decrease. Okay, similarly if I increase more, okay, so this VGS equal to -2 volts. Okay, then VGS equal to -3 volt. Okay, now suppose if I apply VGS equal to -4 volt, तब क्या होगा? सपोज इस चैनल के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट है। इफ आई अप्लाई VGS equal to -4 volt, तब क्या हो जाएगा? पिंच ऑफ में ही बना रहेगा। पिंच ऑफ में बना जाएगा, तो आपको ये करंट ऑलमोस्ट जीरो मिलेगा। जीरो, इसको जीरो करंट मान लेना, ये ऑलमोस्ट जीरो करंट मिलेगा। VGS इक्वल टू -4 वोल्ट। ओके, तो आपका जो सैचुरेशन करंट है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा, माइक्रो एम्पियर में रहेगा। दिस इज मिली एम्पियर। ओके, दिस इज योर ड्रेन characteristics, okay, for n channel JFET. Okay, so if I want to give symbol J channel FET का symbol क्या है? Okay, so the symbol for JFET channel is, this is given by this way. अब बहुत सारे JFET, MOSFET, MESFET, ठीक है, तो symbol is given, this is a drain, okay, this is a source, okay, and here is gate. Okay, and gate में क्या होगा, because this is the P region and this is the N region. अगर मैं इस PN जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दूं तो मेरा करंट का अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? तो बाहर। नहीं, ये PN में ये P है, या गेट को तो सर करंट डिवाइड होने लग जाएगा, नहीं, मतलब इसमें जाने लगेगा PN में। भी अगर मैं मान लो सपोज मैं इसको P कर दूं और इसको N कर दूं और मैं इसको इस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना चाहता हूँ ये VGS लगा के, तो मेरा करंट अंदर जाएगा कि बाहर निकलेगा? फिर अंदर जाएगा। अंदर जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ये याद रखने के लिए अगर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो करंट कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। तो ये एन चैनल JFET का सिंबल है, दिस इज कॉल्ड एन चैनल, सिंबल फॉर एन चैनल। सर एक बार सिंबल समझा देते सर। हाँ, सर भी इसमें एक ड्रेन है, एक सोर्स है, ड्रेन सोर्स N है। ठीक है, ये गेट है। यस सर। ठीक है, दोनों के लिए एक ही यूज किया, गेट है ना। गेट में क्या हो रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना सर। हाँ, बस वही इसको देखना है कि अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता, ये P और N फॉरवर्ड बाइस होता, तब करंट कैसे फ्लो करता? तो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसलिए एन चैनल JFET में क्या होगा, सिंबल अंदर की तरफ होगा। P चैनल में क्या हो जाएगा, सिंबल ये बाहर की तरफ हो जाएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। सब फॉरवर्ड बायस में देखना है, रिवर्स में। फॉरवर्ड बायस मतलब P से P, N से N। फॉरवर्ड बायस मतलब ये जंक्शन, सपोज मेरे पास जंक्शन है P एंड N। ओके, अगर मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया हाँ, तो करंट कैसे ऐसे जाएगा ना, P से N जाएगा। यस सर, यस सर। तो ऐसे जाएगा ना, तो इसीलिए सिंबल इस तरफ है, अच्छा अच्छा, अंदर की तरफ है। ओके, ओके। और ID कैसे फ्लो कर रहा है इसमें? ID देख लो, ID डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ है, क्योंकि ये तो drain सर के through मतलब हम लोग कहेंगे ये N चैनल JFET फॉरवर्ड बायस में। ऐसा बोलेंगे नहीं, इस सिंबल को याद रखने के लिए कि तुमको सिंबल अंदर करना है कि बाहर करना है। अच्छा अच्छा, ये सिंबल है, ठीक है। अब एन चैनल में ये डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, इसके लिए बताया। ठीक है, और P में उल्टा हो जाएगा सर। P में ये सिंबल बाहर की तरफ हो जाएगा। अच्छा, मतलब याद करने का तरीका होगा। याद करने का तरीका होगा। ठीक है, सो कोई सिंबल तो देना पड़ेगा, डिफरेंस तो करना पड़ेगा एन चैनल और P चैनल में। तो ये कन्वेंशन देके उन्होंने सिंबल दिया सर। ठीक है, तो दिस वाज योर एन चैनल, दिस वाज ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। ओके, सो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? ओके, सर वी आउटपुट इनपुट। एक मिनट, अब मैं दिस इज आईडी, ये दोनों अलग अलग ग्राफ हैं पर मैं इनको एक ही स्केल पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करंट की जरूरत है। ठीक है, सो एन चैनल के लिए जो आपका वीजीएस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एन चैनल जेपीटी चैनल के लिए नेगेटिव था सर। नहीं, नेगेटिव था ना, क्योंकि पी को करना रिवर्स करना तो एन नेगेटिव था। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम, तो व्हेन वीजीएस वाज 0 करंट कितना था? ये वाला, this is what called IDSS. This is IDSS. This is the current when VGS equal to 0. Okay, जब VGS 1 हो गया तो करंट कम हो गया, फिर 2 हो गया करंट कम हो गया, और एक पर्टिकुलर VGS के लिए करंट 0 हो गया। ओके, तो इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ से मेरा करंट है, ये when VGS is 0, when VGS 0, this is the current value. ओके, सो और ये करंट क्या है? ये लास्ट में जब VGS equal to 4 volts तो करंट इज 0. So this is my graph. Okay, so this is what, suppose this is 4 volt. Okay, this is my 1 volt. Okay, this is my 2 volt, this is my 3 volts. Okay, so this is the graph between VGS and ID. Okay, IDSS, IDSS. Okay, this is the graph between IDSS या ID बोल सकते हैं, क्योंकि जो IDSS तो 0 वोल्टेज के लिए तो ID बोल दो, तो आपका करंट क्या हो जाएगा? ID. ओके, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। 0 पे जो करंट फ्लो करेगा वो IDSS के पास फ्लो करेगा और बाद में कम होता जाएगा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके सर ये और हाँ। एक बार सर रिपीट कर। हाँ, जैसे VGS 0 है तो करंट कितना है? ID मैक्सिमम करंट कितना है? IDSS। ओके, Yes, sir. फिर जैसे ही वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो मेरा करंट कम होता जा रहा है, सैचुरेशन कम होता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब मेरा वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर है, when my VGS is equal to pinch of voltage, okay, in that condition this current will become, ID current will become 0. Okay, so this is called transfer characteristics, and the relation between from this transfer characteristics, the relation between VGS ID is given by IDSS 1 minus VGS upon VP, VGS upon VP का whole square. Okay, so this is, so when VGS equal to VP, this become 1, so current becomes 0. When VGS is equal to 0, then ID is equal to IDSS. Okay, when VGS is equal to 0, then my ID is equal to IDSS. Okay, IDSS is the saturation current when VGS is 0. Okay, so IDSS is saturation current. तो ये फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन भी है क्या सर? नहीं है इसका, डायरेक्ट करो इसको, कराएंगे एक तरह से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। नहीं, इसका कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, सो IDS इक्वल टू सैचुरेशन करंट एट VGS equal to 0 volts. Okay, so similarly when VGS become VP, this ID will become 0 when VGS is equal to VP. Okay, और यहाँ पे जब भी आपको वैल्यू रखनी है विथ साइन रखनी है, ओके, तो VGS आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, VGS भी नेगेटिव होगा, VP भी नेगेटिव होगा। ओके, तो आपको जो भी वोल्टेज इस इक्वेशन को यूज करना है, तो एन चैनल के लिए करना है या पी चैनल के लिए करना है, तो विद साइन यूज करना। हाँ बोलिए। इसमें मुझे VP बता दीजिएगा सर। VP इज पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके ओके, VP इज पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, और इसको बोलते हैं VP को बोलते हैं VP इक्वल टू VGS ऑफ भी बोलते हैं। ओके, VGS ऑफ। सर इसका नाम ट्रांसफर क्यों रखा गया है सर? अब ट्रांसफर क्यों रखा गया है वो तो पता नहीं, वो तो मैंने भी सोचा नहीं कभी ट्रांसफर क्यों रखा गया है। ओके सर जैसे ओमिक का पता चल रहा है, फिर पिंच का पता चल रहा है, तो ट्रांसफर का वही ट्रांसफर का मतलब क्या होगा? वही है कि ना, दिस इज हाई रेजिस्टेंस। ओके,
दिस इज हाई रेजिस्टेंस, ओके, हाई रेजिस्टेंस है, तो हाई रेजिस्टेंस वो लो वोल्टेज पे आ रहा है, उसके लिए बोलते हैं ट्रांसफर बोलते हैं। लेट मी चेक, मुझे भी क्लियर नहीं है इसका ट्रांसफर क्यों बोलते हैं, ओके, बट दिस इज द नेम, ओके, वन इज कॉल्ड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो दिस रीजन जहाँ आईडी कांस्टेंट है, दैट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस रीजन, ओके, बिकॉज ये पैरेलल हो गया ना इसके, तो दिस इज कॉल्ड वेरी हाई रेजिस्टेंस रीजन, ओके। So this is the relation which you have to remember, एग्जाम में क्वेश्चन इसी ज्यादातर पूछे जाते हैं इसी रिलेशन पे, ओके। so this is the one thing, and second thing, what is the relation between, यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है, डैश कर्व बन रहा है, ओके, दिस इज लाइक अ पैराबोला, ये पैराबोला इक्वेशन नहीं है, ये जो कर्व आ रहा है, यू कैन सी दिस कर्व, डैश कर्व, VDS वैल्यू पहले वीडियो ज्यादा थी, फिर आपने VGS बढ़ाया, VDS कम हो गया, VDS इज व्हाट, पिंच ऑफ वोल्टेज ना, पीछे VDS आपके पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है, तभी तो करंट आपका सैचुरेट होता है ना। व्हेन यू अप्लाइंग VGS, दिस वोल्टेज इज कमिंग डाउन, पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ पिंच ऑफ इज कमिंग डाउन, ओके। सो दिस डैश्ड कर्व इज पैराबोला, और इसका इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज गिवन बाय, हाँ, पैराबोला वाला पोर्शन मुझे समझ नहीं आता। बी ये जो बी, पहले हमने क्या किया था, VGS इक्वल टू 0 के लिए ये प्लॉट किया, हाँ सर वो समझ में आया सर। तो यहाँ ये वोल्टेज है, ये एक्चुअली VP के बराबर काम कर रहा है, यहाँ पे पिंच अच्छा, ऑफ okay. हुआ, इस वैल्यू के लिए वो पिंच ऑफ हुआ, ओके, VDS के लिए, यस सर। ओके। नाउ जैसे ही फिर मैंने VGS बड़ा किया, तो पहले ही पिंच ऑफ हो गया, यस सर। मतलब VDS का वैल्यू कम होता जा रहा है ना अभी। हाँ सर, एक पैराबोला टाइप का कर्व मिल रहा है सर। हाँ, उस दोनों, point से। हाँ, दोनों मिलके काम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, VGS और VP। यस सर। कुछ VGS दे दिया मैंने, तो मेरा VP कम हो गया, VDS की वैल्यू कम हो गई, जो पिंच ऑफ के लिए वोल्टेज चाहिए वो कम हो गई, पहले वो 0 था, तो पिंच ऑफ के लिए VDS मुझे 4 चाहिए था, ठीक है। फिर मैंने वहां से एक लगा दिया, एक -1 लगा दिया, एक लगा दिया, मतलब एक ऐसे सोचो, एक लगा दिया, तो अब इसको 3 चाहिए, तीन VDS इक्वल टू 3 वोल्ट्स पे पिंच ऑफ हो जाएगा, फिर मैंने 2 लगा दिया, अब VDS इक्वल टू 2 वोल्ट्स पे पिंच ऑफ हो जाएगा, फिर मैंने 3 लगा दिया, अब VDS इक्वल टू 1 वोल्ट पे पिंच ऑफ हो जाएगा, फिर मैंने VDS इक्वल टू 4 लगा दिया, अब 0 VDS पे ही पिंच ऑफ हो गया, मतलब VDS लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, समझे। तो ये जो VP जो चेंज हो रहा है सैचुरेशन के लिए, जो वोल्टेज जो VP काम कर रहा है, दैट इज अ पैराबोला शेप, ओके। एंड द इक्वेशन फॉर दिस इज रिलेशन इज गिवन बाय IDSS, ओके, VD सैचुरेशन, ओके। ये VD सैचुरेशन जिसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, यहाँ पे ये पिंच ऑफ के बराबर है, जब ये VDS 0 है, तो ये VDS सैचुरेशन है, ये VDS सैचुरेशन वोल्टेज है, ओके। This relation is given by VGS VP का स्क्वायर, okay. So when VDS saturation is equal to pinch of voltage, okay, this become 1, तो मेरा ID क्या है, IDSS। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, और रिलेशन बिटवीन VGS एंड VDS, ओके, वो कैसा होगा, रिलेशन बिटवीन VDS saturation, VDS drain to source voltage, okay, is equal to what, VGS minus VP, okay, VGS minus VP। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, you have to use this relation with sign। तो इस रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे मेरा VGS मेरा VP है, अगर सर वो स्क्रीन में नहीं आ रहा था सर, कॉमन लिखा VDS सैचुरेशन। अच्छा स्क्रीन में नहीं आ रहा, नीचे हो गया क्या, नहीं सर। सो VDS saturation is equal to VGS minus VP, ओके। सो इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का, अगर मैंने VGS को ही मैंने VP के बराबर कर दिया, तो मुझे VD सैचुरेशन, जो कि ये वाला वोल्टेज है जहाँ पे सैचुरेशन हो रहा है, ये वाला जो चेंज हो रहा है, वो 0 पे हो जाएगा, ठीक है। अगर VGS -2 है, तो वो जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे, जैसे सपोज VP 4 है, -4 है, सपोज ना VGS -4 वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, VGS + 4 वोल्ट, ओके। अब VGS नेगेटिव है, तो अगर मैंने -4 वोल्ट दे दिया VGS को, तो VDS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, VDS 0 हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला कर्व है, ठीक है। अगर मैंने इसको 3 वोल्ट -3 दे दिया, तो ये वाला कर्व यहाँ ये VDS पहुंच जाएगा, ये वाला पहुंच जाएगा, -2 दे दिया तो ये पहुंच जाएगा,
-1 दे दिया तो ये पहुंच जाएगा, 0 दे दिया तो ये पहुंच जाएगा VDS। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये क्या है? VDS सैचुरेशन है। दिस इज द एक्स एक्सिस इज VDS, और कहां पे सैचुरेशन हो रहा है? दिस इज VDS। ओके, VDS 0, दिस इज आल्सो VDS जो कम हो गया तो VDS 1। तो जब जब VDS 0 है, सो आई नीड VDSS इक्वल टू 4 वोल्ट। When VGS is -1 volt, I need VDS equal to 3 volt। कम हो रहा है पैराबोला पे। When VGS equal to -2 volt, I need only 2 volts। Okay, when VGS equal to -3 volt, I need only VDS 1 volt। And VGS is -4, I need 0 volts, 0 VDSs। Okay, so these two voltages work together। Okay, so ये relation बहुत important है, and you have to use this relation with sign convention। Okay, n channel लेके p channel है। Okay, so Yes, sir. this was your n channel JFET। Okay, now same thing p type, if I want to draw p type of JFET। okay, तो कैसा होगा? So if I want to draw p channel JFET, okay, so similarly यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? This become your p type of semiconductor। You have here n type of thing। okay, this is with no bias, n type। okay, this is ohmic contact, this is your drain। okay, this is your source। now you apply here VDD, this is ground, as minus, this is VDD। okay, value variable, so here you will come minus plus VDS, drain to source voltage। okay, so now this is the p type of semiconductor। okay, so current कहाँ आएगा? current will be, ID will be this direction। earlier current is coming going inside, now this is a p type of semiconductor। okay, so हम voltage ऐसा लगा रहे हैं, plus यहाँ लगा रहे हैं, so current will go from here to here। okay, and if I want to write symbol कैसे लिखेंगे इसका? symbol will be, एक बार उल्टा बना देखो। हाँ बस उल्टा बना दो और क्या। ओके, सॉरी। सर करंट कैसा लगाना है ये कैसा पता चलेगा? रिवर्स बायस में होना चाहिए। एक मिनट को बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? दिस इज योर गेट। ओके, दिस इज योर ड्रेन, दिस इज सोर्स, करंट इज गोइंग अप, ID। ओके, एंड साइन विल बी दिस वे। ओके, सो दिस इज योर p channel, symbol for p channel JFET। और वोल्टेज कैसा लगाना है दैट डिपेंड्स, हमको कैसे रिवर्स बायस करना है, ठीक है ना। जैसे अभी p चैनल है तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, अच्छा अच्छा, तो और एन था तो पॉजिटिव कर दिया, मतलब रिवर्स बायस करना हाँ, है किसी। और वो सिमिलरली गेट है, गेट को शॉर्ट कर देंगे। अच्छा सर, इसमें ऊपर वाला ही पोर्शन देखेंगे, नीचे वाला तो सोर्स है ये तो सोर्स उससे है, तो कोई मतलब नहीं उसको है। जीरो मानो ना, इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव है, ओके सर। ठीक है। सो अब एन चैनल है। ओके, तो यहाँ पे गेट, अब आप वैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे पहले किया था हमने, same type of graph। okay, so when VGS equal to 0, okay, now here VDS is now negative। okay, minus 1 volt, -2 volts, -3 volts, okay, -4 volt, this is my VDS, and current also actually negative, ID। okay, so current will be, so this is the graph, so this will be say -12 milliampere, ID in milliampere। okay, and this is what, ये क्या वोल्टेज है? VDS saturation। okay, यस सर। which is equal to VP in the case of when VGS equal to 0 है। okay, this is the VDS saturation। किस वोल्टेज of VDS के लिए saturation आ रहा है? that voltage that is equal to pinch of voltage when VGS equal to 0। okay, तो सिमिलर अब यहाँ पे क्या होगा? VGS आपको n है तो VGS आपको क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव। अगर if I want to plan, so again same curve will come, same you will get this type of graph। okay, so this will be your VGS 1 volt, VGS 2 volt, VGS 3 volt, and this become current almost 0,
when we have VGS equal to 4 volt है, if you are assuming the pinch of voltage is 4 volt. okay, तो ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है. okay, and this is drain characteristics. This is a drain. okay, similarly if I want to draw transfer characteristics, तो आपकी VGS पॉजिटिव है. सर वो राइट हैंड साइड में थोड़ा ब्लॉक हो रहा है सर ये फिगर, अच्छा, VGS वाला. VGS equal to, okay, अब दिख रहा है. This is VGS 0, यस सर. VGS 1 volt, VGS 2 volt, VGS 3 volt, VGS 4 volt. okay, so और अगर इसके भी VGS को और ज्यादा आगे ले गए तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. पहले वाले ग्राफ में वैसे करना है, ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर तुम और ले गए तो. ठीक है, और जहां पे वोल्टेज VGS ज्यादा है वहां जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि दो वोल्टेज लग रही है, अभी दो एक साथ लग रही है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन रीजन. अगर पीएन जंक्शन पे रिवर्स वाला लगा रहे हैं तो एक लिमिट से वोल्टेज बढ़ जाता है तो उस वोल्टेज के लिए ब्रेक डाउन हो जाएगा. जल्दी और ब्रेक डाउन रीजन. ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे हमारे लिए, इसलिए मैंने प्लॉट सर इसमें VGS रिवर्स है ना सर? पहले भी रिवर्स था. तो पहले सर नेगेटिव वोल्टेज फिर VGS -1 -2 क्यों नहीं लगा सर? किस पे? अभी ये VGS मैंने अभी ड्रॉ कर किया है. नेगेटिव है लेकिन वोल्टेज तो पॉजिटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू एन के लिए पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा ना. अब बैटरी ऐसे लगेगी ना. अच्छा. ओके, आप मेजर करोगे तो सोर्स विद रिस्पेक्ट टू सोर्स मेजर करोगे तो ये पॉइंट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना. यस सर. तो VGS आपका, ठीक है, सो दिस इज वेरिएबल VGS भी बोलता हूं, बैटरी लगाता ही नहीं हूं. ठीक है, आपकी प्लस होगा. ठीक है ना, तो VGS विल बी प्लस एंड दिस इज VDS. नीचे ग्राफ क्या है, VDS drain to source voltage, that will be negative, current will be also negative. okay, so this is -10, this is -8, this is -6. okay, सब सेम है. और आगे वैसे ही ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींचना है तो आपकी VGS पॉजिटिव है, ये जो जीरो पे VGS इक्वल टू जीरो पे जो करंट होगा दैट विल बी IDSS सैचुरेशन करंट, और VGS इक्वल टू EP पे जीरो हो जाएगा. तो आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऐसा आएगा. कोई खाली बस प्लॉट करने का डिफरेंस है, अदर थिंग्स आर ऑल सेम. दिस इज VGS and then this is VGS equal to VP. okay, VGS equal to VP, this is your transfer characteristics and this is ID. so इसको फील्ड कैसे कर रहे हैं भी, हम क्या कर रहे हैं, इस पे वोल्टेज लगा के रिवर्स बायस को फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं. जैसे एक नल से पानी को कंट्रोल करते हैं, यू हैव एक नल लगा हुआ है इस पे. ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है. ठीक है, अब वॉल को मूव करके हम फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, सिमिलरली हियर यूजिंग गेट, यहाँ पे गेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यूजिंग गेट इलेक्ट्रोड, ओके, वी आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. P channel में majority charge carriers holes हैं. okay, in N type the majority charge carriers were electron. so by applying, इसमें तो मेजॉरिटी होल्स है सर, तो हाँ. इसमें कैसा फ्लो होगा सर करंट का? तो वही सीधा ऐसे फ्लो होगा. ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, या इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, P टाइप है, होल्स हैं. हाँ. तो होल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं बैटरी तो सर होल्स तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना सर? तो बात तो वही है ना, आप इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं या होल्स ऊपर मूव कर रहे हैं, बताने के लिए तो मेजॉरिटी चार्ज के होल्स हैं यहाँ पे. ठीक है, यस सर. ये प्लस से ऊपर जा रहे हैं. अच्छा. जो इम्प्यूरिटी से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल्स वो हैं ये वाले. ठीक है, अच्छा सर. P type semiconductor. so this is moving up. okay, so that's why this is called field effect rise. okay, now we'll do some problems. एक मिनट, हाँ बोलिए सर इसका ब्रेकडाउन हाँ. हो रहा है. बैटन हो रहा है ना, बैटन तो होगा ना. अगर आगे जाओगे आप, अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो फिर एक पर्टिकुलर VDS के लिए ब्रेकडाउन हो जाएगा. वो मैंने पहले वाले में एक जगह एक पोजीशन से क्यों नहीं हो रहा है सर? कहाँ पे होना चाहिए?
योर वॉइस, आवाज कट रहा, एक मिनट, आवाज कट रहा तुम्हारा भाई। ब्रेकडाउन तो हो गई कि कोई पीएन जंक्शन को आप रिवर्स बायस कर रहे हो, तो जब भी रिवर्स बायस वोल्टेज आपके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंचेगा तो ब्रेकडाउन तो हो गई। तो ये तो यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर जब VGS 0 है तो एक VDS की वैल्यू के लिए 4 से, जब 4 से आगे जाएंगे 5 6 7 8, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है, 10 पे आके ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ VDS लगा दिया है तो अब 9 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जाएगा VDS के लिए। अब 2 लगाते हैं तो 8 वोल्ट पे हो जाएगा, 4 लगाते हैं 6 वोल्ट पे हो जाएगा। तो अभी दोनों वोल्टेज साथ में काम कर रहे हैं, रिवर्स बायस दे रहे हैं, तो ब्रेकडाउन तो हो गई। रिवर्स बायस लगाया है तो एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ब्रेकडाउन हो गई। पिंच ऑफ तो पहले हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज तो कम ही है, 3 4 5 होता ही है। अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा पिंच ऑफ वोल्टेज से, तो वो आगे जाके ब्रेकडाउन हो जाएगा। सर बट दोनों मिला के तो सेम वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है ना, मतलब सर 4 वोल्ट सेम मिला के, वो तो सेम मिला के तो हो गई दोनों टोटल मिला के भी। वही है कि आप एक बैटरी से रिवर्स बायस कर रहे हो, आप 2 बैटरी से रिवर्स बायस कर रहे हो, तो VDS तो कम लगाना पड़ रहा है ना, VDS तो कम लगाना पड़ रहा है क्योंकि VGS लगा रहे हैं अलग से। तो जैसे ये 10 वोल्ट पे हुआ, अब VDS 8 पे हो जाएगा क्योंकि 2 वोल्ट और एक्स्ट्रा वहां से लगा दिया हमने। दोनों दोनों साथ में है, अब 2 बैटरी लगी हुई है, एक 2 दे रही है 8, टोटल तो वही है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज नाम का दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर वोल्टेज VDS के लिए ब्रेकडाउन हो जाएगा, और अगर VGS भी है तो वो जो 10 है यहाँ तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, है ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 ही, पर VDS तो 8 लगाना पड़ा, 2 तो VGS लगाना पड़ा ना। क्लियर? यस सर। सर और क्वेश्चन है कि सर ये पिंच ऑफ मतलब क्लोज क्यों नहीं हो रहा है सर? क्या चीज फुल क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ सर। अच्छा, अभी देखो, अगर फुल क्लोज तो इस डिवाइस का प्रॉपर्टी है। ओके, अब सपोज मैं मान लेता हूं कि ये फुल क्लोज हो गया। ओके, फुल क्लोज का मतलब क्या होता है? करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया। और करंट जीरो कब होता है? जब यहाँ पर वोल्टेज सेम हो जाए। ठीक है ना? यस सर। करंट जीरो हो गया, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो गया, तो इसका मतलब करंट जीरो होने का मतलब है यहाँ पे वोल्टेज सेम, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, तब तो ये पीएन जंक्शन सिमेट्रिक हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं यहाँ वोल्टेज ज्यादा, रिवर्स बायस ज्यादा, तभी तो ये ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ये ID जीरो हो गया तो वो, अगर ID जीरो होता तो फिर ये सिमेट्रिक होता, फिर एक जगह से बंद नहीं होता, वो तो फिर पूरा आके ऐसे बंद होता है, और रियलिटी ऐसा होता नहीं है। ओके, वो ऊपर से बड़ा होता है, दैट इज असिमेट्रिक। ओके, असिमेट्रिक है और ब्लॉक हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इफ अगर जीरो हो जाएगा तो ये दोनों वोल्टेज सेम हो जाएंगे, फिर तो सिमेट्रिक हो जाएगा। वो भी साइन है कि ब्लॉक नहीं होता है, पर ये है कि ब्लॉक नहीं होगा लेकिन ओपनिंग रहेगी, पर वहां पे करंट डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। ओके, करंट तो लिमिट पे पहुंच गया, पर यू हैव ओपनिंग, यू आर रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, यू आर डिक्रीजिंग, तो करंट डेंसिटी उस पोजीशन पे बहुत ज्यादा हो जाता, ज्यादा हो अच्छा जाएगा। सर, मतलब ऊपर नीचे 0 होगा तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो फिर तो हमारा, हम जो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से ऐसे बढ़ा के फिर ऐसे बढ़ा के, वो सिमेट्रिक कहाँ है? वो तो अनसिमेट्रिक, हमारा तो असिमेट्रिक है। ठीक है, फिर वो असिमेट्रिक से एकदम सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा? ओके, सो दिस इज डिवाइस वर्किंग। ओके, नाउ जो फॉर्मूले इसमें 2-3 ही है, जो एक फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो ID जो VGS से निकलता है, दैट इज ID, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। ID, ओके, ID इज ड्रेन करंट, IDSS, ओके, 1 माइनस VGS VP, ओके, और VP को समटाइम वी कॉल इट IDSS 1 माइनस VGS, और VGS ऑफ भी बोलते हैं, VGS ऑफ। ओके, एंड स्क्वायर भी था ना? स्क्वायर भी था। और इसी फॉर्मूले से अगर मुझे VGS निकालना है, सो आई कैन कैलकुलेट VGS इक्वल टू VP। दोनों में स्क्वायर होगा ना सर? 1 माइनस, हाँ दोनों में स्क्वायर, एक ही तो है चीज है। ओके, माइनस ID SS, ओके,
ये इसी से निकाला मैंने, आईडीएस को नीचे भेज दिया उधर, अंडर ले लिया, एंड देन VGS इक्वल टू VP, और यू कैन राइट VGS ऑफ 1 माइनस अंडर रूट IDSS। ओके, ये तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका, और सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था आपको अभी, VDS saturation is equal to VGS minus VP with sign you to use। थर्ड फॉर्मूला मैंने बताया था पैराबोला वाला फॉर्मूला क्या था, ID ओके इक्वल टू IDSS VDS saturation। VDS saturation में चेंज हो रहा है VP के VG के साथ में। ओके, दिस इज योर, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसी पे सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और फिर बायसिंग तो आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, वो भी हम देख लेंगे बाद में बायसिंग का भी। ओके, सो क्विकली वी विल डू वन प्रॉब्लम। सर एग्जाम में इससे कितना पोर्शन आता है सर? आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते हैं क्वेश्चन बहुत माइनर से, कंस्ट्रक्शन पे ही पूछ लेते हैं। इसके लिए VGS पॉजिटिव, गेट वोल्टेज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एन चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं। क्वेश्चन देखो तुम गेट के करके, बहुत कम आते हैं लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन में ड्रेन करंट पूछ लिया। सो क्वेश्चन 1, यू आर गिवन वन JFET फॉर JFET। ओके, IDSS इज गिवन। IDSS क्या होता है? What is IDSS? ड्रेन टू सोर्स करंट। Drain to reverse saturation drain current when VGS equal to 0. Okay, IDS, and VGS is given minus 4 volt. VGS off is given minus 4, that is VP is given, this is VP is given minus 4 volt. Find the drain current, okay, for VGS equal to 0 volt, VGS equal to minus 1 volt, VGS equal to minus 4 volt, and VGS equal to minus 8 volt. Okay, इनके लिए you have to calculate drain current. Okay, so formula क्या है? ID equal to IDSS 1 minus VGS upon VP का स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है VGS 0 है, तो VGS 0 होगा तब ID कितना होगा? IDSS तो सेम हो जाएगा, ये वही आ जाएगा ID इक्वल टू IDSS, ओके, इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, एंड योर VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। ये N चैनल JFET है कि P चैनल JFET है? VGS नेगेटिव है ना, N चैनल। ये पहचानना पड़ता है क्वेश्चंस में। ओके, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आते हैं पहचानना पड़ता है, तो ये दिस इज योर N चैनल JFET। ओके, सो दिस इज सर ये GS नेगेटिव में आ रहा है इसीलिए N चैनल बोला ना, इसीलिए बोला, ठीक है। और P चैनल होगा तो फिर करंट की वैल्यू आपको माइनस में, ID माइनस में रखनी पड़ेगी। ओके, सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? माइनस 1 वोल्ट पे क्या होगा? VGS पॉजिटिव होगा उसमें। ID कितना आएगा माइनस 4 वोल्ट के लिए? सर 5.625 हाँ, वेरी गुड। ओके, 5.625 मिली एम्पियर। 5.625 मिली एम्पियर। ओके, वेरी गुड। और VGS जब 4 है तब क्या आएगा? सर 0। वेरी गुड। VGS 4 करते ही बस आपको साइन रखना है, तो ये क्या है? VGS -4, और आपको VP which is VGS off, that is also going to -4। ओके, तो ये 1 हो गया तो 0 हो गया। ओके, सो ID will be 0 when VGS equal to -4 volt। अगर VGS equal to -8 volt तब क्या होगा? अरे वो तो फिर VP से ज्यादा हो गया ना, नेगेटिव में आएगा ना सर। वो 0 आएगा क्योंकि वो तो अब तो क्रॉस कर गया VP को, वंस VP को क्रॉस कर गया। ओके, VGS आपको क्रॉस कर गया,
करंट तो जीरो हो ही गया, उससे ज्यादा थोड़ी बड़ा तो- करंट रिवर्स थोड़ी होता है, ठीक है। तो आईडी जीरो हो जाएगा आईडी मतलब जीरो हो ये जाएगा बात। भैया, यहाँ पर अगर तुम माइनस 8 वोल्ट रख दोगे तो करंट तो नेगेटिव आ जाएगा, पर कैरेक्टरिस्टिक्स में कभी नेगेटिव होता है क्या, ठीक है। तो वो ऑलवेज जीरो हो जाएगा क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन पिंच ऑफ वोल्टेज, तो आईडी आपका ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो VGS -8 वोल्ट, okay. So we'll do some more problem tomorrow, okay. I'm stopping here. ओके सर। Okay, thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।